ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ہماری بھی سنو میں بدر منیر چودھری حاضر خدمت، اور ہمارے ساتھ ون اینڈ اونلی شرمیلہ فاروقی۔ کبھی آپ کو احساس ہوا کوئی اور بھی ہے شرمیلہ پاکستان میں آپ کے پائے کی بولنے والی، اور آپ سمجھتی ہیں اور اس کی ریٹنگ بھی ہو کہ جب آپ پروگرام میں بیٹھی ہوئی ہیں ریٹنگ بھی ہوتی ہے جی شرمیلہ صاحبہ کچھ صرف دیکھنے کے لیے ہی آپ کا پروگرام وہ میں شامل ہوتے ہوں گے؟ شرمیلہ فاروقی تو ایک ہی ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، ہمارے یہاں اور بھی بہت اچھی خواتین ہیں جو بول بھی لیتی ہیں۔ ہر چیز ابیلٹی نہیں ہوتی، پولیٹیکل ویژن، پھر آپ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ بات بھی اچھے طریقے سے کر رہی ہیں، ڈھنگ سے کر رہی ہیں۔ دیکھیے ہارڈ کور پولیٹیکل ورکرز بھی ہوتے ہیں، ان کی اپنی صفات ہوتی ہیں، ان کی اپنی کوالٹیز ہوتی ہیں، تو ہر کوالٹی ہر کسی میں نہیں ہوتی ہے، کسی کی کوئی ایڈوانٹیج ہوتی ہے۔ آپ کی ڈیمانڈ تو بہت ہوگی وہ شوز میں، بلاتے ہیں، اکثر بلاتے ہیں، اکثر بلاتے ہیں۔ شادی کا سوال کرتے ہیں، میں نہیں کر رہا، کیا جواب دیتی ہیں؟ میں یہ کہتی ہوں کہ کر لوں گی، کر لوں گی۔ اچھا، امید دلاتی ہیں کہ میرا خیال ہے شادی ایک ایسا شادی ڈھول ڈھمکے سے کریں، شادی ڈھول ڈھماکے سے مثلا وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ دو گواہ اور اس کے بعد تصویر کسی انگلینڈ کے پیپر میں آ گئی یا امریکہ کے پیپر میں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ شادی ایک بنیادی ایک مذہبی فریضہ ہے جو کرنا ہے اور ایونچولی ہوگا، تو اس کے لیے زیادہ باقاعدہ اہتمام سے ہونا چاہیے۔ فاصلہ ہے وقت کا اس آپ جب ڈیسیژن لیں گی؟ نہیں، بہت زیادہ نہیں، بہت کم ہے۔ ایک دو مہینے نہیں، ایک دو مہینے نہیں، اتنے فیوچر میں نہیں، اسی سال آئی تھنک نیکسٹ ایئر۔ اچھا، نیکسٹ 2013 میں گو کہ مجھے 13 کا ہنسا پسند نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے جس ملک میں آپ آئی ہیں وہاں پہ 13 جو ہے وہ ایک تو منزل نہیں ہوتی جی، آپ ایلیویٹر سے جائیں 13 آپ ہے ہی نہیں ہے اس میں، تو کیسے 2013 آپ وہ جو علم الاعداد ہے اس پہ یقین نہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہے جی۔ ستاروں پہ کبھی ہاتھ دکھایا؟ ستاروں پہ بہت سال پہلے بدر صاحب ہاتھ بھی دکھایا، نجوموں کے پاس بھی گئے، لیکن آپ یقین کیجئے کوئی بھی چیز کہیں بھی صحیح نہیں نکلی۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو علم ہے یہ بہت کم لوگوں کو آتا ہے، میرا ان لوگوں سے واسطہ نہیں ہوا کہ جن کو، لیکن اتنے لوگ نہیں موجود ہیں۔ اچھا، ہاتھ دیکھنے والوں نے کیا بتایا، کیا ہوگا؟ ہاتھ دیکھنے والوں نے اچھا ہی بتایا تھا، خیر وہ تو خوش کرنے کے لیے بتاتے ہیں نا، ظاہری بات ہے کہ آپ کا جو مستقبل بہت اچھا ہے، برا وقت اب ٹلنے ملکہ برطانیہ بن جائیں گی۔ لیکن ایسا ہے کہ دیکھیے عزت دینے والا اللہ کی ذات ہے، اور میں ایک چیز میں بڑا بلیو کرتی ہوں، اور ہم سب مسلمان یہی کرتے ہیں کہ مانگا صرف اللہ تعالیٰ سے جاتا ہے، ہر کوئی اللہ تعالیٰ، ہم اکثر لوگوں سے مانگنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ لوگ جو خود اللہ سے مانگتے ہیں، جن کو خود اللہ دیتا ہے، اور اگر ڈائریکٹ رابطہ اللہ تعالیٰ سے ہو تو اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں۔ جو آپ کی شادی ہے وہ کسی پولیٹیکل فیملی میں یا پولیٹیکل کوئی تعلق واسطہ ہو سکتا ہے؟ اور میں نے میرا سے پوچھا تھا ایک بار، فلم سٹار میرا سے، یہیں ٹورنٹو میں آئی تھیں، تو شادی کے بارے میں پوچھا میں نے، تو انہوں نے کہا تھا ہو سکتا ہے کہ نکاح پاکستان میں ہو، بارات جو ہے وہ انگلینڈ سے آئے، ولیمہ کینیڈا میں ہو، کوئی پلاننگ کی آپ؟ نہیں، جو کچھ ہوگا پاکستان میں ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا پاکستان میں ہوگا، کراچی میں ہوگا۔ کراچی میں اچھا، سلیکشن ہو چکی؟ نہیں، سلیکشن نہیں ہو سکی، لیکن میں نے پاکستانی سے شادی کرنی ہے، پاکستان میں رہنا ہے، یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ سبھی میڈیا والوں کو بلائیں گی اور پھر لائیو آپ کو پتہ ہے وہ پھر نکاح؟ بالکل، آپ کو بھی دعوت دوں گی، آپ نے بھی ضرور شرکت کرنی ہے۔ میری ٹکٹ کون دے گا؟ میں دے دوں گی۔ بہت شکریہ۔ اچھا، کبھی آپ کو لگا کہ آپ جس مقام پہ ہیں آئندہ 10 سال کے بعد کس مقام پہ ہوں گے؟ بدر صاحب، فیوچر کا تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، مستقبل کا یہاں پلک جھپکتے ہی کچھ ہو جاتا ہے، انسان کی اپنی زندگی کا کچھ اعتبار نہیں ہے، لیکن کوشش یہ ہوگی کہ پارٹی کی خدمت کرتی رہوں، قوم کی خدمت کرتی رہوں، اور اللہ تعالیٰ سیاست میں عزت دیں۔ برا وقت بھی آپ نے دیکھا ہے؟ بہت۔ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے سب سے برا وقت جب میرا خیال ہے کہ اور کبھی احساس ہوا اس کا کہ کیوں ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا؟
देखिए मेरा ख्याल है कि हमारी किस्मत के फ़ैसले ऊपर से लिख के आते हैं, इंसान के हाथ में बहुत कम होता है, ज़ाहिरी बात है दुआएं किस्मत के फ़ैसले बदल देती हैं। लेकिन मुझे वो याद है जब पहली दफ़ा मुझे थाने में बंद किया गया था, और इंसिडेंटली दैट वाज March 2, 1998, बिल्कुल सही, यही महीना था। और जब पहली रात मैंने वुमेंस पुलिस स्टेशन में थाने में गुजारी, दैट चेंज्ड माई लाइफ। और उसके बाद मैंने आई वॉज 16 प्लस, और मुझे कुछ नहीं पता था, थाना पुलिस कोर्ट कचहरी कुछ नहीं पता था। और वो रात जब मैंने गुजारी, आपकी फैमिली, आप तो एक नाज़ो नाम में और बड़ी लाडली एक लड़की अकलौती, उसके बाद वो थाना और उसका मंजर अजीब सा, जिंदगी में किताब नहीं लिख रही इस पे? किताब लिखूंगी रिटायरमेंट से पहले। शेयर कर रही थी, बताइएगा। तो वो उस रात ने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तब्दीली जो है वो की। और जब मैं सुबह, पूरी रात में खैर जागती रही, और सुबह जब हुई और रोशनी आई उस लॉकअप में, तो उसके बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि इससे आगे अब एक स्ट्रगल है। सही। और जो इज़्ज़त गवाई है उसे कमाना है वापस। और मेरी कोशिश यही रही है बदर साहब, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, कोई माने या ना माने, कि मैंने हमेशा ये फ़ैसला किया कि अल्लाह ताला ने जो भी मकाम दिया, मेरी पार्टी ने मुझे जो भी मकाम दिया, उसमें इज़्ज़त कमानी है। सही। और सियासत में पैसे कमाने बहुत आसान है, इज़्ज़त कमाना बहुत मुश्किल है। इज़्ज़त बचाना बड़ा अजीब सा। देखिए इज़्ज़त तो मैं समझती हूँ बचाने की क्या बात है, सियासतदान वैसे ही बदनाम है, एक क्रेडिबिलिटी सियासतदानों की इज़ एट द लोएस्ट एब। तो उसमें अब कमाने की बात है कि आपने इज़्ज़त बनानी है लोगों में, और काम करना है। मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा एफर्ट लगता है, लेकिन अगर अच्छा काम करें तो यही सोसाइटी है, यही लोग हैं जो आपको पजीराई भी देते हैं। लेकिन हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं कि कभी एहसास हुआ कि खातून होने के नाते से कितनी मुश्किलात हैं पॉलिटिकल फील्ड में? बेतहाशा। कुछ शेयर करना चाहें किस लेवल? देखिए हमें तो जज किया जाता है लिबास से लेके, गुफ्तगू से लेके, बैठने के तरीके से लेके, हर चीज़ पे जज किया जाता है, बड़ा क्रिटिकली जज किया जाता है। मर्दों के लिए आसान है, जहाँ बैठ गए, जो खा लिया, जिससे मिल लिए। हमें तो हर चीज़ पे जज किया जाता है, और ये कहा जाता है कि औरत है, ये क्या काम करेगी, इससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप। तो काम में भी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, एक्नॉलेजमेंट बड़ी मुश्किल से मिलती है। अगर अच्छा काम भी करें तो एक्नॉलेजमेंट बड़ी मुश्किल से मिलती है। लेकिन वक्त के साथ साथ जब लोग आपको सीरियसली लेना शुरू करते हैं, शुरू में कोई नहीं लेता आपको सीरियसली, अच्छा। लेकिन जब वक्त गुजरता है, जब लोग देखते हैं कि एफ़र्ट की है, अच्छा काम किया है, तो उस पर मैं, जिस तरह मैंने कहा ना, कि पजीराई डेफिनेटली मिलती है। और सबसे अच्छी फीडबैक होती है कि जब आप रास्ते पे चल के जा रहे हैं और आम पब्लिक जब आपसे मिलती है, जो गुफ्तगू करती है या अगर कोई अच्छी बात कहती है, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट जो आपको मिलता है। आसिफ अली ज़रदारी आपके साथ बड़े मुशफ़क़ हैं, तो क्या समझती हैं कि वो आप को किस मुकाम पे देखना चाहते हैं सियासत के अंदर, या कोई ऐसी बात कि शर्मिला आपको ऐसा होना चाहिए, या आपको किस फील्ड में होना चाहिए? देखिए प्रेसिडेंट साहब बेशक उनकी बहुत मेहरबानियाँ हैं मुझ पे। आज मैं जो कुछ भी हूँ अल्लाह ताला की ज़ात के बाद अगर कोई ज़ात है तो वो प्रेसिडेंट साहब हैं, कि उन्होंने मुझे मकाम दिया। जब उन्होंने मुझे एडवाइज़र अपॉइंट करवाया तो ज़िम्मेदारी मुझ पे आती थी कि आई शुड नॉट लेट हिम डाउन, क्योंकि जब मैं अपॉइंट भी हुई थी तो मुझे याद है कि कावस जी ने उसके 2 दिन बाद ही संडे था, कावस जी डॉन में संडे का वो लिखते हैं, तो उन्होंने लिखा कि जी ये क्या डिसीजन है कि इनको अपॉइंट किया, ये क्या करेंगी और क्या इनकी एजुकेशन, क्या बड़ा नेगेटिव सा एक वो था। एंड दैट अगेन चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव ऑन पॉलिटिक्स एंड आपने कुछ करके दिखाना है। तो उसके बाद ही मुझे बड़ा बुरा लगा। और मुझे याद है कि मेरे एक अंकल हैं, वो उनके बड़े करीबी दोस्त भी, मैंने उनसे कहा कि बड़ी ज़्यादती है मेरे साथ कि अभी मुझे 2 दिन हुए अपॉइंट हुए और ये बात है। उसके बाद मैंने बड़ी मेहनत करी और कोशिश करी कि फिर मुझे वो मिले कावस जी। 2 साल बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे ये कहा कि यू प्रूव मी रॉन्ग,
तो आई थिंक कि मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी बात थी, ना कि कावजी साहब कोई बहुत बड़ी शख्सियत है, लेकिन एक शख्स जिसने ये लिखा था उनके ही कॉल की यू प्रूव मी रॉन्ग। तो आई थिंक कभी इस पे डिस्कशन तो नहीं हुआ प्रेसिडेंट साहब से, लेकिन वो मुझे हमेशा एक बात कहते हैं कि तुम अकेली की पोती हो और वही इज़्ज़त कमाओ और वही मेहनत करो जो तुम्हारे नाना करते थे। तो मैंने कोशिश हमेशा ये करी है कि पार्टी को, अपनी लीडरशिप को, अपने लोगों को कभी लेट डाउन ना करूं, मेहनत करूं। अच्छाई बुराई ज़िंदगी का हिस्सा है, कभी गलत काम भी हो सकता है, इंसान हूँ, लेकिन कोशिश ये की है कि अच्छे काम की तरफ। अगर आप इजाज़त दें तो लाइट मूड में मैं प्रोग्राम एंड करना चाहूँगा कि लव मैरिज। आई थिंक सो। अच्छा, यस। तो अंडरस्टैंडिंग तो ज़िंदगी में अगर मोहब्बत ना हो, ख्वाह वो वालिदैन, देखें ये पूरी कायनात अल्लाह ताला ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बना दी, दोनों जहां उनकी मोहब्बत में उन्होंने बना दी है। तो मोहब्बत इंसान की ज़िंदगी का एक बुनियादी हिस्सा, एक फ़ितरत में है। हम अपने वालिदैन से बहुत मोहब्बत करते हैं, आप बच्चों से बहुत मोहब्बत करते होंगे, मुल्क से हम मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत, जिसके दिल में मोहब्बत नहीं है वो इंसान, मैं समझती हूँ कि बड़ा दुखी इंसान है वो। तो डेफिनेटली ज़िंदगी गुजारने के लिए आप एक ऐसे शख्स के साथ गुजारें, एक ऐसे शख्स के साथ आपने जिसके साथ अंडरस्टैंडिंग हो, एक मोहब्बत हो, क्योंकि वालिदैन से मोहब्बत होती, बच्चों से मोहब्बत होती, तो मियाँ से मोहब्बत होनी बहुत ज़रूरी है। तो एक डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पाकिस्तान में कभी ये इंकिशाफ किया कि आप लव मैरिज करने जा रही हैं? नहीं, उसमें बड़ी क्रिटिसिज्म हो जाएगी। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। में शामिल हुई। कोई पैगाम देना चाहें तो कैमरा आपके सामने है, जो बाहर लोग बैठे हुए हैं तो आप बात कर सकते हैं। बस बहुत शुक्रिया TV1 का कि मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों से ये गुफ्तगू कर सकूं। एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि आप तमाम लोग जो यहाँ पर कनाडा में मुकीम हैं, यू एम्बेसडर्स फॉर पाकिस्तान, आप पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन यहाँ कर रहे हैं। जो भी काम करें, जो भी बात करें, पाकिस्तान के मफाद में करें। आफ्टर ऑल, एट द एंड ऑफ द डे, यू आर अ ट्रू ब्लू पाकिस्तानी, और पाकिस्तान है तो हमारी इज़्ज़त है, पाकिस्तान है तो हम हैं। बहुत शुक्रिया। शर्मिला साहब, एक बार फिर मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपका मशकूर हूँ, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हमारा साथ दिया, और प्रोग्राम के हवाले से कोई भी कमेंट्स देना चाहें तो info@tv1 Canada। प्रोग्राम हमारी भी सुनों से इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें और उन दोस्तों का जो आपका बहुत ख्याल रखते हैं। खुदा हाफ़िज़।